Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this vocabulary series, we are going to learn words starting with letter O. So पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी सारे वर्ड्स लर्न किए हैं which starts from different letters till N. So अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ है then please go and watch it from the link that I've included in the description section of this video, and even you can watch it from the top right corner of your screen. Now, I hope this vocabulary series is making you learn so many words that are definitely going to help you in your exams, and even are going to increase your vocabulary knowledge and usage of words in different situations, right? So let me know in the comment section below your feedbacks for this particular series. Now, before we continue further, I would like to say that please watch the video till the end, because every word is important. You never know which word can fetch you some more marks in your any of the exams. Now, let's continue with the first word for today that starts with the letter O, and that is obligatory. Now, obligatory is an adjective, yeah? So, what is an adjective? अगर आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ा और डिटेल में जाननी है, so I have made some of the videos regarding to parts of speech. So you can watch it too from the link I have included in the description section. Now, obligatory means obligation. कंपल्सरी है कोई चीज़, बाइंडिंग है या इम्पोज की गई है आप पे कि ये करना ही है, ये बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे लॉज वगैरह होते हैं, लीगल लॉज वगैरह, तो ये आपके ऊपर क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, ऑब्लिगेटरी होते हैं. अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो इसके रेपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट ऑब्लिगेटरी मीन्स, that which means an obligation. Let's look into the example to get it more clear. Wearing a face mask is obligatory in this store. So इससे याद आता है COVID-19 का, right? So when corona hit, became a pandemic, and the situation was worse, the face mask was obligatory, was compulsory to wear. ठीक है? And maintaining social distancing was obligatory. So यहाँ से obligatory का मतलब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, which means compulsory. Moving on to the second word for today, that is oblique. Oblique is a very nice word. It means, it is also an adjective first of all, and it means not straightforward, something which is said in an indirect way, or slant या inclined. Slant का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है? जब अपन मैथ्स वगैरह में और ड्राइंग जब बनाते थे तो टीचर यूज टू से कि स्लैंटेड लाइन बनाना, इंक्लाइंड लाइन बनाना. सो दैट इज व्हाट ऑब्लिक मीन्स, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट. Let's look into the example. The oblique rays of sunlight filtered through the branches, casting a dappled pattern on the forest floor. तो जो सन की सनलाइट होती हैं वो कैसी होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, राइट? दे आर नॉट स्ट्रेट, है ना? वो ऑब्लिक होती हैं, लाइक दे आर इंक्लाइंड. और कैनोपी बनता है, फॉरेस्ट का कैनोपी यू हैव सीन, जैसे ये फोटो में रेफरेंस भी है. एंड दिस इज व्हाट ऑब्लिक मीन्स. कभी कोई आपको इनडायरेक्ट वे में भी कुछ बोलता है, राइट? इनडायरेक्ट वे में आप कुछ किसी को कन्वे करना चाह रहे हो, दैट इज ऑल्सो ऑब्लिक. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ड फॉर टुडे, दैट इज oblivion. Oblivion is a noun. In simple words, if I explain, it means a state of being completely forgotten, disregarded या ignored. ठीक है? किसी चीज़ को एकदम भूल जाना या इग्नोर कर देना, ठीक है, डिसरिगार्ड कर देना, इज रिफर्ड एज ऑब्लिवियन. इट मीन्स अ स्टेट ऑफ हैविंग फॉरगेटन, कोई चीज़ भूल जाना. लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर ऑब्लिवियन. The artist's work was hailed as a masterpiece, but as time passed, it faded into oblivion, overshadowed by newer trends. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आर्टिस्ट का एक पेंटिंग है फॉर एग्जाम्पल, वो मास्टरपीस था सम ईयर्स बैक, बट जैसे जैसे नई क्रिएशंस, नए आर्ट वर्क्स आने लगे, वो धीरे धीरे एक फेडेड स्टेट में चला गया, लोग उसको भूल गए. दैट इज़ रिफर्ड एज ऑब्लिवियन. इट हैपन्स इन दी फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी बदलते जाते हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे हमारे दिमाग से वो जो चीज़ें थी कुछ टाइम पहले जो चलती थी, काफ़ी फैशन में थी, काफ़ी ट्रेंड में थी, वो हम भूल जाते हैं और न्यू ट्रेंड्स जो आते हैं वो उसको हम फॉलो करने लगते हैं. तो वो दैट स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज रिफर्ड एज ऑब्लिवियन.
आई होप यू गेट दिस. अगर आर्टिस्ट वाले एग्जाम्पल से समझ नहीं आया होगा तो फैशन वाले से ज़रूर समझ में आ गया होगा, राइट? तो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ओके, आई विल बी ग्लैड टू हियर इट आउट. Moving on to the fourth word for today, that is obnoxious. Obnoxious is an adjective again. It means objectionable, something that is offensive, something that is annoying या फिर revolting. ठीक है, तो obnoxious हम किसी इंसान को रिफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी पीपल के लिए, किसी इंसान के लिए, या फिर कोई एक्शन के लिए, कोई साउंड के लिए, या फिर कोई स्मेल के लिए, which can be described as obnoxious. We can describe them as obnoxious, something that is very disturbing, very annoying. तो उसको हम obnoxious बोल सकते हैं. ठीक है, and let me tell you that obnoxious is a negative connotation. ठीक है, and it suggests activities that are very annoying and undesirable type की चीज़ें. एग्जाम्पल मैंने बहुत बढ़िया मेंशन किया है जो आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेगा. The obnoxious advertisement on the website popped up repeatedly, interrupting the user's browsing experience. राइट? तो अभी ये यूट्यूब में ऐड आते हैं, कोई आप साइट में फीड्स स्क्रॉल कर रहे हो तो वहाँ पे एड्स पॉपअप होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के पॉपअप्स आते हैं, तो वो काफ़ी कुछ टाइम में बहुत ही अनोइंग हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं, राइट? सो दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हियर आर रेफर्ड एज ऑब्नॉक्शियस. वाई? बिकॉज दे आर वेरी अनोइंग एड्स, है ना, जो हमारे काम के भी नहीं है फिर भी आ जा रहे हैं, पॉपअप हो जा रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस जो है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, उसको ख़राब कर देते हैं. तो दैट इज़ रेफर्ड एज ऑब्नॉक्शियस. I hope you get this. Moving on to the fifth word for today, and that is obscure. Obscure is a verb which means to hide या to make doubtful. जब हम कोई चीज़ किसी से छुपाते हैं, ठीक है, हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सामने वाले को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, दैट इज़ obscure. Let's see the example. The heavy rain obscured the road signs, causing drivers to miss their exits. So इसका मतलब ये भी होता है कि आने वाले जैसे हैवी रोड, जब हैवी रेन होती है, आजकल तो हो ही रही है काफ़ी सारे स्टेट्स में, राइट? तो इट हाइड्स द रोड साइन कॉजिंग ड्राइवर्स टू मिस देयर एग्जिट्स. तो ऑब्सक्योर मतलब किसी चीज़ को हाइड कर देना, ठीक है, छुपा देना. तो जब काफ़ी रेन होती है या फॉग होता है, स्मॉग होता है, तो बहुत सारे रोड में ना साइंस और सिम्बल्स, इवन पॉट होल्स नज़र नहीं आते हैं, राइट? तो इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो इस एग्जाम्पल में ये है कि ड्राइवर्स जो होते हैं वो अपनी एग्जिट्स ही मिस कर जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट ऑब्सक्योर मीन्स. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वर्ड फॉर टुडे, एंड दैट इज ऑडरिफरस. ऑडरिफरस इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या है? ओडर. ओडर इज मीन्स स्मेल, राइट? तो ये वर्ड का मीनिंग है जो स्मेल से रिलेटेड है, एंड इट मीन्स एमिटिंग अ स्मेल ऑफ फ्रेगनेंस. तो हर चीज़ों की डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक तरीके की स्मेल होती है या फ्रेग्रेंस होती है. दैट इज रिफर्ड एज ऑडरिफरस. ओके, इट इम्प्लाइज अ नोटेबल और रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ स्मेल. ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल. द इंसेंस burned slowly, releasing an odoriferous smoke that filled the temple with a serene atmosphere. ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने अपने घरों में, मंदिरों में, है ना, काफ़ी जगहों में. तो जो इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, उनकी डिफरेंट स्मेल, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज होती हैं उनकी, राइट? सो दैट स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक इज रिफर्ड हियर एज ऑडरिफरस. ओके, आई होप यू गेट दिस. मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ईजी एग्जाम्पल्स इसीलिए रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए. कोई भी चीज़ मिस हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ नई चीज़ आप सीख रहे हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी. ओके, मूविंग ऑन टू द सेवेंथ वर्ड फॉर टुडे, दैट इज ओमिनस. ओमिनस इज अगेन एन एडजेक्टिव. काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स आज हम लर्न कर रहे हैं. इट मीन्स इम्पेंडिंग, थ्रेटनिंग, पोर्टेंडिंग, एविल. मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही डरावनी है, थ्रेटनिंग है, या फिर ऐसा मतलब क्या बोलेंगे उसको, ऐसा दर्शा रही है कि कुछ गलत, कुछ डरावना होने वाला है. पोर्टेंडिंग, एविल. ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, इससे समझ में आएगा. डार्क क्लाउड्स गैदर्ड ओवरहेड कास्टिंग एन ओमिनस शैडो ओवर द सिटी. बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया ये तो, क्योंकि अभी जो यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टेट्स में जो मैंने बताया कि रेन्स हो रही हैं, ठीक है, तो बारिश हो रही है, और काफ़ी टाइम हमने देखा है जो डार्क क्लाउड होते हैं वो गैदर हो जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि आने वाले टाइम बहुत बारिश होने वाली है, कुछ टाइम में बारिश हो जाएगी. तो एक ओमिनस, एक थ्रेटनिंग शैडो ओवर द सिटी समझ में आ जाता है थ्रू डार्क क्लाउड्स. सो दिस इज़ व्हाट ओमिनस मीन्स. थ्रेटनिंग या फिर पोर्टेंडिंग इविल, कुछ गलत होने वाला है या कुछ डरावना होने वाला है या कुछ जो हम नहीं चाह रहे हैं वो होने वाला है, समथिंग लाइक दैट.
मूविंग ऑन टू द एट्थ वर्ड फॉर टुडे दैट इज ओनस. वेरी कॉमन वर्ड, काफ़ी लोगों को पता होगा. इट इज़ अ नाउन. इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन. जब आपके घर में किसी की शादी होती है, राइट, तो जो आपके घर का बड़ा होता है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सर पे ही होती हैं, सो ही इज़ रिफर्ड एज ओनस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम और मैरिज और एनी अदर फंक्शन, राइट. तो ओनस मतलब जिसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा बर्डन उसी को झेलना पड़ रहा है. सो ओनस. देन लेट्स सी द एग्जाम्पल. द ओनस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल रेस्ट्स ऑन द इंडिविजुअल. ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, आपको मिल गया कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की. कोई आपको आके नहीं करा सकता है. इट इज़ यू हु हैज़ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु हैज़ टू बियर दैट बर्डन. ओके. Moving on to the ninth word that is opportune. Opportune is an adjective again. It means convenient, timely, occurring at a fitting time. तो जब कोई चीज़ बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही टाइमली हो जाती है, होती है, दैट कैन बी रेफर्ड एज opportune. उस चीज़ को हम opportune बोल सकते हैं. Let's see the example. The company launched its new product at an opportune time, capitalizing on the growing market demand. Very easy example. कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट की कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, एनी कंपनी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, न्यू सर्विसेज आती हैं. सो एक ऐसे टाइम में वो प्रोडक्ट आया जब मार्केट डिमांड ज़्यादा थी. तो ऐसे टाइम पे जब कोई प्रोडक्ट आ जाए तो वाह वाह, मतलब कंपनी के 4 चांद लग जाते हैं, राइट. सो कंपनी के प्रोडक्ट को ऑब्वियसली. सो दैट टाइम इज रिफर्ड एज ऑपरट्यून टाइम, मतलब एकदम कन्वीनियंट टाइम, एकदम राइट टाइम. मूविंग ऑन टू दी 10th word for today, that is opulence. Opulence is a noun which means richness, affluence, conspicuous wealth या फिर luxury. ठीक है, काफ़ी rich, काफ़ी wealthy, luxurious is opulence. Let's see the example. The opulence of the billionaire's mansion. Mansion मतलब घर. ठीक है. Was evident in its sprawling grounds, private helipad, indoor swimming pool एंड वॉट नॉट. ठीक है. तो ऑपुलेंस मतलब रिचनेस. ठीक है. कोई भी बिलियनेयर हो, मिलियनेयर हो, उसका मेंशन जो होता है, उसका जो घर होता है, उसकी जो रिचनेस है वो कैसे हमें समझ में आ जाती है. उनका खुद का एक स्विमिंग पूल होता है, राइट. प्राइवेट हेलीपैड भी हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आम लोगों के घर में हमें नहीं मिलती है, बट इनके में मिलती है. तो उनके घर से हमें वो रिचनेस, वो वेल्दी वाली फीलिंग समझ में आती है. एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑपुलेंस इज यूज्ड है. ओके. Moving on to the 11th word, that is opus. Opus is a noun which means composition, creation, production या work. तो अगर मैंने कोई चीज़ कंपोज की है, मैंने खुद का कोई काम किया है, कोई आर्टिकल लिखा है, कोई म्यूज़िक कंपोज किया है, या कोई पीस ऑफ आर्ट क्रिएट किया है, माई वर्क इज़ रिफर्ड एज ओपस. आपने कुछ क्रिएट किया है, आपका कुछ खुद का काम है, तो वो ओपस कहलाएगा. ठीक है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. The poet's opus of love sonnets has been praised for its lyrical beauty and emotional depth. ठीक है. Love sonnets मतलब छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, राइट. सो ओपस मतलब पोएट्स के क्रिएशन ऑफ लव सोनेट्स. ठीक है, जो वो लिखते हैं. मूविंग ऑन टू द 12th वर्ड फॉर टुडे, एंड दैट इज ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स वेरी कॉमन वर्ड विच मीन्स इज एन एडजेक्टिव. इट मीन्स एक्सेप्टेड, कन्वेंशनल, ये ट्रेडिशनल, बहुत टाइम से लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, बहुत ही कन्वेंशनल थॉट जिस पे लोग एकदम टिके हुए होते हैं. ठीक है. बहुत ही एक्सेप्टेड बिलीव्स और कस्टम्स जो होते हैं, दैट इज रिफर्ड एज ऑर्थोडॉक्स, राइट. ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, काफ़ी टाइम से वैसे ही चला आ रहा है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. द ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू मेडिसिन रिलाइज ऑन प्रूवन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स. लाइक होम रेमेडीज होती हैं बहुत सारी मेडिकल उसमें फील्ड में, है ना. जैसे हम बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह के मेडिसिनल यूज़ होते हैं, प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस होते हैं, और उसी अप्रोच को बहुत लोग आज भी फॉलो करते हैं. है ना, जो अभी नए नए मेडिसिन वगैरह आ रहे हैं उस पर वो रिलाई नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज़ पे रिलाई करते हैं जो पहले से ही चली आ रही हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी, ऑल ऑफ दीज. सो द ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू मेडिसिन रिलाइज ऑन प्रूवन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड ऑर्थोडॉक्स इज यूज्ड बिकॉज दैट टाइप ऑफ मेडिसिन इज वेरी ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, बहुत टाइम से लोग उस पर बिलीव रखे हुए हैं या उसको मानते हैं. सो दैट इज ऑर्थोडॉक्स. नाउ मूविंग ऑन टू द 13th वर्ड, दैट इज ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी इज अ नाउन. इट मीन्स द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली. ठीक है. व्हेन यू स्पेल अ वर्ड करेक्टली, है ना, दैट इज रिफर्ड एज ऑर्थोग्राफी.
So the use of autocorrect software has made it easier to avoid errors in orthography while typing on digital devices. Wow, what example. बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल. ऑटो करेक्ट फीचर होता है हमारे कीबोर्ड्स में, हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑटो करेक्ट के बहुत. जब हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं डिजिटल डिवाइस में तो वो स्पेलिंग अगर हमने गलत लिखी तो वो अपने आप सही हो जाती है, राइट. सो स्पेलिंग यहाँ पे आया है, इसलिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफी वर्ड यूज़ हुआ है फॉर स्पेलिंग्स. ठीक है. मूविंग ऑन टू दी 14th word for today, that is ostentatious, which is an adjective which means pretentious या showy. शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, जो तुम हो नहीं बट तुम प्रिटेंड कर रहे हो, शो कर रहे हो, दैट इज ऑस्टेंटेशियस. लेट्स सी द एग्जाम्पल. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए करी जाती हैं, प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं. सो हियर इज अ गुड एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ सीकिंग ऑस्टेंटेशियस रिकॉग्निशन, मतलब शो करना, शी प्रिफर टू क्वाइटली कॉन्ट्रीब्यूट टू अ चैरिटेबल कॉजेज. बहुत सारे लोग ऐसे तो चैरिटी करते हैं, लेकिन जितने की चैरिटी नहीं होती उतने का तो उनका एडवर्टीजमेंट हो जाता है, शो ऑफ हो जाता है कि अरे हमने इतना दिया, राइट. सो इंस्टेड ऑफ सीकिंग ऑस्टेंटेशियस मतलब शोई रिकॉग्निशन, शी प्रिफर टू क्वाइटली गो कॉन्ट्रीब्यूट एंड स्टे हैप्पी. या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं लेकिन कभी उसका हल्ला नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते. दैट is the word used here, that is ostentatious. Moving on to the 15th word for today, that is oust. Oust is a verb which means to expel, to remove or dismiss. ठीक है, निकाल देना, रिमूव कर देना, डिसमिस कर देना is referred as oust. Let's see the example. बढ़िया से समझ में आ जाएगा. The shareholders successfully organized a campaign to oust the current management and install new leadership. ठीक है, oust मतलब to dismiss, to remove the current management और एक नई लीडरशिप लाई जाए, नए लोग लाए जाए, उसके लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज हुआ. सो आई होप यू गेट दिस वर्ड आउस्ट. नाउ असाइनमेंट फॉर द डे which you have to research on these 5 words now. First word for you to research on is obliterate, which is a verb, obsession, which is a noun, obstinate, adjective, obviate, verb, and ossify, verb. हो सके तो इसकी मीनिंग ज़रूर कमेंट बॉक्स पे डालें, ठीक है, मेरे को भी कुछ लर्न करने मिल जाएगा. सो या do research on these 5 words. All the best. Thank you for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to the channel. And yes, happy learning. See you in the next video. Till then, take care, stay safe.